अब मैं विनीता मैम एडवाइजर हेल्थ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जया मैम को सम्मानित करें। अब मैं मनोज सर डीएस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कमिश्नर नेक्स्ट असित गोपाल जी को सम्मानित करें। अब मैं विनीता मैम से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नवलजीत सर जॉइंट सेक्रेटरी को सम्मानित करें। अब मैं मनोज सर डीएस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डॉक्टर दीप्ति जैन को सम्मानित करें। चेयरपर्सन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एच चिंजासन सर अंडर सेक्रेटरी जो डॉक्टर अनुपम सचदेव जी को सम्मानित करें। अब मैं मनोज कुमार सर रिसर्च ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डॉक्टर नीता राधा कृष्णन को सम्मानित करें। है ट्रेनिंग में भी जो है यही हमारे एक्सपर्ट्स होंगे। 3 सेशंस हैं, ईच वन ऑफ देम विल बी टेकिंग 1 सेशन। नमस्कार। इस ट्रेनिंग सत्र में टीओटी के ट्रेनिंग सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी एडिशनल सेक्रेटरी जया मैम से कि वो वेलकम एड्रेस दे। सर नमस्कार सर, इट्स माय प्लेजर। मुझे बहुत बेहद आज खुशी है कि आज ये लॉन्च प्रोग्राम हम कह रहे हैं, असल में ये शुरुआत है अवेयरनेस कैंपेन्स का, एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का और अवेयरनेस कैंपेन का। आज जब सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, तो उस मिशन का एक बहुत बड़ा अंक है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को सौंपा गया है, उसकी जिम्मेदारी करी गई है, और वो है अवेयरनेस जनरेशन, लोगों में जागरूकता को पैदा करना। और आज हम उस जागरूकता पैदा करने के कड़ी में आप पहुंचे हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रिपरेटरी वर्क, और उसमें हमारे मंत्री जी को इस कार्यक्रम में, इस लॉन्च में मंत्री जी के हाथों अगर कमलों से हो रहा है, तो जो है सर मैं आपको इसके लिए बहुत आभार हूँ कि आपने हाँ कहा इस फंक्शन के लिए, और आपको मैं इस फंक्शन में सहृदय आपको वेलकम करती हूँ सर, सुस्वागत करती हूँ। हमारे सेक्रेटरी साहब ने कल भी उन्होंने किस तरह करना है, क्या करना है, ये अवेयरनेस मॉड्यूल जब आया तो जो है हर अक्षर उन्होंने पढ़ा है उस अवेयरनेस मॉड्यूल का, कहूंगी तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका गाइडेंस हमारे पास हमेशा रहा है। And sir, today it's my great pleasure to welcome you to this function and see the launch of a few months efforts happening, sir. Thank you so much for being here, sir. I also welcome my predecessor in the bureau and a person who has been very much in the forefront for bringing sickle cell mission to that budget announcement. He has been involved with the elimination, the control of sickle cell disease for a very long time, since I think, sir, you joined the ministry way back in 2018. Dr. Navaljeet Kapoor is present here with us. I'm grateful to him for having brought this caravan to this level where we are able to boast to the outside world that the Ministry of Tribal Affairs is now emphasizing on these aspects. Thank you for the work you have done, sir, and we would like you to be associated with us in future also. And thank you, sir, for so much for being here to encourage us. Thank you. It's my pleasure to also welcome Shri Asit Gopal, our Commissioner NES, and quietly, sir has been trying to look into all aspects of the EMRS children, and
We are also now wanting to look at how tribal health can be a priority, not only in the EMRS, but the EMRS to set itself up as some models, which could then get replicated wherever tribal children are to be found. So thank you, sir, for being here with us. Welcome. And a special welcome to our 3 committee members, our experts for the day, people who are going to take the technical sessions. Dr. Deepti Jain, ma'am, I don't think you need any introduction to this hall. Suffice it to say that the Ministry of Tribal Affairs knows the efforts that you have done in the Nagpur Gadchiroli area, and it's our pleasure to be associated with you. Thank you so much for being here. Welcome. Dr. Anupam Sachdeva is another name. I don't think any of the committee members needs any introduction, but Dr. Anupam Sachdeva, as we all know, has again been in the forefront of not only hematology, pediatric hematology, and also has been involved tremendously with the sickle cell disease and other kinds of blood disorders. And sir, thank you so much, doctor, for being here with us. I know we will be next setting upon another TOT for which would be more technical in nature, not only for awareness generation, but also for the management of the disease itself, which under your able leadership, your organization, the Sir Gangaram Hospital, has through the ministry's funding been able to bring out an entire volume on training of trainers. So we look forward to having that training of trainers also coming up soon. There are other committee members. I will not take each one of their names, but suffice it to say that each one present here has at some point of time or the other contributed and been very passionate. I have sat through some of their meetings. Thank you all for being here. And a special thanks to everybody who has joined us online. Our master trainers who are probably looking forward to the technical sessions, and also as to what their role would be in this entire mission. I promise you it's going to be a very exciting, energetic, and most important, satisfying journey when we are going to have, hopefully at the end of this awareness campaign, an entire way in which we can make a distinction, a difference in the lives of the tribal population. So welcome to everyone who has joined online. A special welcome to Director AIMS Dioghat, who is also here but online. Welcome to Dr. Neeraj Thakre, the President of the International Pediatric Association. Thank you, sir, for joining at an extremely short notice. Thank you to all our medical fraternity who are here. I cannot take each one of your names, but please be assured that your encouragement, your support, and engagement with you will be a cornerstone of our work during this entire mission period. Thank you all so much for joining us, and thank you to our own officials for having made this possible today. And to the press, I do hope that today's event would be covered in a manner where the awareness generation starts happening from day one. Thank you all so much. A very warm welcome to all of you. Thank you. Thank you so much for the welcome address. हमारे जो संरक्षक हैं, मैं कहना चाहूंगी हमारे सेक्रेटरी साहब जिन्होंने हम लोग को काफी मोटिवेट किया इस काम के लिए, आई रिक्वेस्ट करूंगी कि सर 2 शब्द इस विषय में कहें. Thank you, Jay, and thank you, Vinita, for organizing this very meaningful event today. Honorable Union Minister for Tribal Affairs, Shri Arjun Munda जी, जो हमारे इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमेशा ही उन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन भी किया है, मार्गदर्शन भी किया है और समय समय पर हम लोग को उत्साहित करते रहे हैं. हमारे सभी कोलीग्स मंत्रालय में, जया और नवल और बाकी सभी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं इस पर, विशेष रूप से all the technical experts without whom we could not have done anything, and I'm really grateful that at a in very short durations these modules have been prepared and got vetted without
proper awareness, this program cannot become a success. There was a time when for TB also there was hesitation among the population, but slowly people understood. लोगों ने एकदम गांव-गांव तक ये समझ में आ गया कि टीबी का एक तो इलाज भी है और दूसरा किसी भी बाकी बीमारी की तरह ये किसी को भी हो सकता है और इसका होना या ना होना किसी बाकी सोशल या इकोनॉमिक चीज पे ऐसे के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अब वही उस तरह का ही कुछ सिमिलर फेज हमको फेस करना है सिकल सेल एनीमिया की तरफ से, क्योंकि इसमें unlike TB also, it's a very special thing because it is genetic and then entire family gets identified, and then particularly the youth and the young boys and girls who will be starting their life, they get identified. So how to orient them, how to properly advise them to choose between two very difficult positions. One is to live with it without getting known. Another is that know about the consequences and then bear with it. Both are very difficult things. But if we can counsel them properly, then the second option for any wise thinking, intelligent and our all, ये बात है कि जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, चाहे वो हमारे गांव में रहने वाले लोग हों या हमारे जनजातीय लोग हों, सभी में एक जागृति आ गई है। और जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश का करीब करीब 10% जनजातीय जनसंख्या का है, और जब हम ये देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है और एक तरह से आकांक्षा रही है कि सभी देशवासी मिल करके जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं उसमें सब लोग योगदान करें। तो जब तक एक 10% आबादी का इसमें अगर बहुत अच्छा उनके ह्यूमन रिसोर्स का अगर नहीं होता है उपयोग, तो हम लोग इस तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और उनके जो एफर्ट्स हैं, उनमें जो आर्ट, कल्चर, ट्राइबल जो एंटरप्राइजिंग एबिलिटी है, उनकी जो योग्यताएं हैं, वह सब निर्विवाद हैं, सभी आप लोग जानते हैं। और इसलिए ये जरूरी था कि हम लोग इसको मिशन मोड में चलाएं। और आप सभी जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड दिस सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, और हमारा ये आप लोगों के साथ मिलकर के स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सभी हॉस्पिटल्स, और इसमें कोई पब्लिक प्राइवेट ऐसी कोई डिस्टिंक्शन भी नहीं है। और हमारे कमिटी में भी एक्सपर्ट्स हैं जो दे आर फ्रॉम ऑल टाइप ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर अभय बांग जी की कमेटी थी, तो उसमें भी बहुत लोगों ने काम किया और आगे भी हम लोग मिल करके काम करते रहेंगे इसमें। तो आज के इस आयोजन में विशेष रूप से जो हमारे जो 2 अवेयरनेस के मॉड्यूल हम लोगों ने जो आपकी सहायता से हम लोगों ने, मतलब आपने ही बनाया है, और उसको हम लोग आज उसको विधिवत फॉर्मली लॉन्च करेंगे। और इसके बाद जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी चॉकआउट किया गया, तो अभी तो मास्टर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स टाइप का है कि आप लोग सुपर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट पिरामिड आप लोग उस पर हैं। हमारे जितने एक्सपर्ट्स यहाँ पर हमने बुलाए हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को गाँव के जो अंतिम जो हमारी जो लिटरली जो आशा की किरण है, आशा तक हम लोग को पहुंचना पड़ेगा। और साथ साथ सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, गांव के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो आंगनवाड़ी चलाते हैं, उन सब को हमको मिल करके, और गांव के पंचायत के लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं, सब लोगों को मिल करके इसमें काम करना है। तो ये एक 3 लेयर ट्रेनिंग हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और उसके नीचे के लेवल पर, जिसमें कि हर तरह का ये किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह से हम लोग तक पहुंचे, और साथ साथ में लोगों को हम लोग प्रेरित करें कि सबसे पहला हमारा टारगेट है कि कम से कम 7 से 8 करोड़ लोगों का इसमें है कि पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए लोग आगे आए, स्वेच्छा से आगे आए और खुशी खुशी आगे आके अपना टेस्ट भी कराएं, और उसके बाद हम लोग उनको ये कॉन्फिडेंस दे सकें कि केवल टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, केवल एक कार्ड नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका हम आगे भी ध्यान रख रहे हैं काउंसलिंग के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, और जरूरत पड़े तो कोई भी जो हायर ट्रीटमेंट होता है उसके थ्रू। तो आज फिर आप लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, सभी अपने डॉक्टर कलीग्स को, और ऑनरेबल मंत्री जी को मैं विशेष रूप से इसमें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा हम लोग का इसमें मामले में उत्साह बढ़ाया है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेटिंग वर्ड्स। हमारे बीच हमारे आईआईपी के प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर नवीन ठक्कर, वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर नवीन ठक्कर जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपने 2 शब्द बोलें प्लीज। धन्यवाद। आदरणीय मंत्री महोदय, सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, मेरा नाम डॉक्टर नवीन ठक्कर है। मैं अभी करंट प्रेसिडेंट हूँ इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन का, जो 113 साल पुरानी संस्था है। पूरे विश्व के 10 लाख जो बच्चों के डॉक्टर हैं पीडियाट्रिशियन उनकी, और हमारे 150 कंट्री से ज़्यादा में 164 मेंबर सोसाइटी हैं। जैसे इंडिया में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है। मंत्री महोदय, आपको मैं खूब और सबको बधाई देना चाहूँगा जो आपने ये इतना अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मैं आपको 1-2 मिनट में ग्लोबल पर्सपेक्टिव बोलता हूँ कि कितना क्या इसका वो है। अंदाजन 10 करोड़ लोग हैं दुनिया में जिनको सिकल सेल ट्रेट पाया जाता है। वो हर साल 3 लाख जितने बच्चे सिकल सेल डिजीज के साथ पैदा होते हैं दुनिया में, उसमें 75% अफ्रीका में है। और मोस्टली 5 साल के पहले 80% बच्चों की डेथ हो जाती है। 5 से 16% ये अंडर 5 मॉर्टेलिटी का कारण है। और ये माना जाता है कि 2050 तक इसमें 30% इंक्रीज होगा अगर हमने और भी इसमें कदम नहीं लिए तो। अफ्रीका की 23 कंट्री हैं जिनको हाई बर्डन माना जाता है, और बेसिक हेल्थ इंटरवेंशन है, प्रीनेटल डायग्नोसिस, पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस, वैक्सीनेशन, इन सब को अगर हम स्केल अप कर सकते हैं तो हम करीब 53 लाख जो वो है उनकी लाइफ 2050 तक प्रोलॉन्ग कर पाएंगे बच्चों की। 10 लाख जो बच्चे हैं उनको हम बचा पाएंगे, और जिसमें से 85% अफ्रीका में है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम जो भी ग्लोबल लेवल पे जो भी एक्सपर्टाइज है वो हम इंडिया लाने की कोशिश करेंगे, और जो ज़रूरत होगी। ये पहली बार है कि इंडिया से कोई आईपीए की प्रेसिडेंसी भी इंडिया में आई है, पहली बार 113 साल की हिस्ट्री में। और साथ में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं, हमारा जो वो है वासुदेव कुटुंबकम का, तो हमको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन पार्टनरशिप करना चाहेगी, और एक ग्लोबल मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। जो हमारा फिलॉसफी है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, उसके अंतर्गत लॉन्च करना चाहिए। और इंडिया को अपनी एक्सपर्टाइज पूरे वर्ल्ड को देना चाहिए। वो खासकर जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं वहाँ अभी भी इन इंटरवेंशन का प्रमाण बहुत कम है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे कलीग्स जो डॉक्टर अनुपम सचदेव हैं यहाँ पे, वो इस हमारा प्रोग्राम है जो सिकल सेल का, उसको लीड करते हैं, और डॉक्टर नीता राधाकृष्णन भी उसकी सदस्य हैं। तो जरूर से आपको खूब शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और साथ में इसको एक ग्लोबल मूवमेंट बनाइए, और पूरे ग्लोबल साउथ को इंडिया अपनी लीडरशिप दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। नमस्कार और खूब बधाई और शुभकामनाएं। कक्कड़, दिस वाज ग्रेट। एक्चुअली आईआईपी से हम लोग ने अभी कुछ दिनों पहले ही संबंध अच्छे से स्थापित किए, और हमने आईआईपी गायनेकोलॉजी एसोसिएशन, जिनके प्रेसिडेंट भी आज यहाँ पे हैं, सभी लोगों को इनवाइट करके इसी तरह से अभियान जिस तरह से आपने कहा है उसको हमने चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग मिनिस्ट्री के दौरे। और हमारे माननीय मंत्री जी का यही रहता है कि हम सभी लोगों को मैक्सिमम इन्वॉल्व कर सके। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय, जो हमारे डायरेक्टर हैं एम्स देवघर के। उनसे निवेदन करूंगी कुछ इस विषय में कुछ बातचीत करें। जुड़ने का मौका दिया। सेक्रेटरी सर, एडिशनल सेक्रेटरी मैडम और जॉइंट सेक्रेटरी साहब को भी धन्यवाद। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मंत्री जी ने समय देकर एम्स देवघर को 7 मई को यहाँ पर आए थे, और हम लोगों ने एक नेशनल समिट ऑन ट्राइबल हेल्थ पे रखा था। माननीय मंत्री जी ने आके उसका उद्घाटन किया, और एम्स देवघर को एक जिम्मेदारी दी कि आप लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्राइबल हेल्थ पे काम करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे मंत्री जी का कि उन्होंने हमको एम्स देवघर में भरोसा दिया। उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर ह्यूमोग्लोबिनोपैथीज
के लिए एक प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को सबमिट किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग सिकल सेल पे काम करने का सामर्थ्य और दायित्व लेने के लिए तैयार हैं। और एम्स देवघर ऐसे राज्य में स्थापित है जिसमें जनजातीय की बहुलता है। लगभग 29% पॉपुलेशन यहाँ पे ट्राइबल है। और जिस जगह पर एम्स देवघर स्थापित भारत सरकार द्वारा किया गया है, तो संताल परगना में तकरीबन 40% राज्य की ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। तो एक बहुत बड़ा दायित्व एम्स देवघर का है और उसका दायित्व का हम लोगों को पूरा आभास भी है। और हम अपनी तरफ से बिल्कुल माननीय मंत्री जी को सुनिश्चित करना चाहेंगे कि एम्स देवघर को यदि एक रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे देखा जाए, तो हम लोग आसपास के 3-4 राज्यों की जिम्मेदारी लेके ट्रेनिंग में भी प्रतिभाग कर सकते हैं। और आगे जो जो हमको जिम्मेदारी दी जाए, इस जो एक आह्वान माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व में माननीय मंत्री जी द्वारा उसको कार्यान्वित किया जा रहा है, उसमें एम्स देवघर पूरा सहयोग जो भी और हम आपको आश्वासन सर दे सकते हैं कि एम्स देवघर आपके भरोसे को पूरा करके दिखाएगा। और हम इसको अपने एक दायित्व समझते हैं कि हम ऐसी जगह स्थापित हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हीमोग्लोबिन, सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया पे हम लोग अपना योगदान, उसके डिटेक्शन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट तीनों पे थे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एम्स देवघर को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया और हम लोगों को इससे बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। हमारी पूरी टीम हमारे साथ सर आज इस कार्यक्रम को अटेंड कर रही है। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर। आपने कहा कि आप हमारे साथ सहर्ष जोड़ना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि सारे एम्स इंडिया के जितने भी हैं वो हमारे साथ जुड़े और हमें जो है सहभागिता से ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय मंत्री जी से कि एक लॉन्च है हमारा अवेयरनेस का, उस कैंपेन को लॉन्च करके कार्यक्रम की आह्वान, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आह्वान करें। आजादी के अमृत काल में अपने देश के समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आदिवासी समुदायों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त करने का प्रण लिया है और शुरू किया राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। इस मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच होगी। आउटरीच कैंप लगाए जाएंगे, रोकथाम के लिए परामर्श दिया जाएगा। इसमें आपका सहयोग भी जरूरी है, इसलिए शादी के समय और गर्भधारण के बाद अपनी सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर करवाइए। साथ ही साथ अगर आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलापन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो, तो निकट के स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या विशेष अभियान शिविरों में जाकर सिकल सेल एनीमिया की जांच अवश्य कराएं। सिकल सेल एनीमिया मुक्त समृद्ध भारत बनाएं। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है, यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है।
खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। होगा समृद्ध भारत मेरा, समावेशी विकास होगा। सिकल सेल एनीमिया जल्द देश से साफ होगा। प्रण लिया भारत सरकार ने, इस बीमारी को मिटा देंगे। हम भी जांच करा कर अपना हक निभा देंगे। सिकल सेल रोग एक अनुवांशिक बीमारी है। एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलापन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो तो ये सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया है। तो आज ही अपने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर जाँच कराते हैं और सिकल सेल एनीमिया का नामो निशान मिटाते हैं। मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। ये कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली। A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. हमारे देश में हमारे आदिवासी पॉपुलेशन हमारे देश के निर्माण में उसका भी एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। उसका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी है। सिकल सेल एक पुराना डिसीज ट्राइबल सेक्टर में विशेषकर देखा जाता है। उसकी नाबूदी के लिए मुझे पक्का विश्वास है, मेरी मिनिस्ट्री की ओर से उसको मिशन मोड में काम करके 2047 तक हम देश में से सिकल सेल को नाबूद करने के लिए कोशिश करेंगे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर सिकल सेल को लेकर एक नया अभियान प्रारंभ हो रहा है और सिकल सेल मुक्त भारत का संकल्प लेकर इस अभियान को 2023 से प्रारंभ कर 2047 तक यह बीमारी या समस्या जड़ से समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। सर, ये छोटे छोटे ईवीज थे जिन्होंने जिनके माध्यम से समाधान और निदान दोनों जो सिकल सेल मिशन है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी रही, आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ में जो दूसरी भूमिका जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो हमारे माननीय मंत्री जी की थी, क्योंकि उन्होंने समय समय पे हम सबको प्रेरित किया और साथ ही साथ संवेदनशीलता के साथ इस मिशन को किस रूप में ले जाना है वो हमें जानकारी भी। हम लोगों ने बहुत जितनी भी चीजें जो सिकल सेल मॉड्यूल्स बने या हमारे जितनी भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बने या जितनी भी हमारी चाहे वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी रही हो और हमने जो हेल्थ कैंप्स किए, उसकी सभी के पीछे एक प्रेरक व्यक्ति जो हम लोग को समय समय पे गाइड करता है वो हमारे मंत्री जी आज हमारे बीच हैं। ये हम सबके लिए बहुत सहर्ष का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध करूंगी कि इस विषय पे संतोष करें। आज के इस
बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य आधारित कार्यक्रम के शुभारंभ ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स के इस अभियान में हमारे विभागीय मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा जी इस समय विशेष तौर से इस कार्य के लिए मंत्रालय की ओर से प्रमुख भूमिका के दृष्टि से कार्य कर रहे जया जी, इसके पहले इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए काफी क्योंकि जिसकी चर्चा हमारे सेक्रेटरी साहब कर रहे थे, अभय कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार हमारे जॉइंट सेक्रेटरी नवलजीत कपूर जी, सभी जॉइंट सेक्रेटरी गण और इस समय उपस्थित विशेष तौर से इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन डॉक्टर दीप्ति जैन जी, डॉक्टर अनुपम सचदेवा जी, डॉक्टर नीता राधा कृष्णा जी और हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं आईपीए के ठाकर जी, डॉक्टर विंकी रघवाणी जी, मिसेस शोभा तुली जी, डॉक्टर अमिताभ सिंह जी, डॉक्टर मानस कालरा जी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान लगातार दे रहे हैं और इस समय जुड़े हुए सभी वरीय चिकित्सकगण, राज्यों के मंत्री सहित ऐसे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी महत्वपूर्ण प्रतिनिधिगण और प्रेस के मित्रों, तकनीकी सत्र में इस कार्यक्रम के निमित्त जैसे 3 सत्र में यह कार्यक्रम आज होना है और उसमें कई चर्चा होगी। जैसे अभी बताया गया कि इसे एक मिशन के रूप में लेकर प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इस कार्यक्रम को लोकार्पित करते हुए समस्त देशवासियों के समक्ष एक अभूतपूर्व कार्य योजना को सफल करने का आह्वान किया। और हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहली तिथि निर्धारित थी उस तिथि में उस समय वहां के मौसम बहुत प्रतिकूल रहे और प्रतिकूल होने के कारण वहां कार्यक्रम में काफी असुविधा की बात कही गई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश जाने के बाद भी वहां नहीं जा पाए और उन्होंने सूचना दिया कि इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली फिर पुनः हम आना चाहेंगे और कुछ ही दिनों के अंतराल में यानी मुझे लगता है कि 27 को पहली तिथि निर्धारित थी और उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद 1 जुलाई को पुनः कार्यक्रम बना। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम किसी राज्य में इतने कम दिनों के अंतराल में कम बनते हैं, लेकिन इससे इस बात का हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का
और इस देश के उन जनजातीय क्षेत्रों का इतना अधिक प्राथमिकता है कि हम इसका अस्थायी समाधान ढूंढने में सफल हुए। और इसी को लेकर यह आज का कार्यक्रम, जिसमें हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और हम सभी ऑनलाइन के माध्यम से पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी प्रतिभागियों और ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे सभी विशिष्ट जनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे खुशी है कि आप सब जुड़कर इस कार्यक्रम के निमित्त आपने अपने संकल्पों को देश के प्रति दोहराया है। और मुझे आशा है कि इसका जो मूल लक्ष्य है, एक लक्ष्य जिसे हमने घोषित किया है कि 2047 तक हम इसका अस्थायी समाधान ऐसे ढूंढेंगे कि देश इससे मुक्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही जो प्राथमिक चुनौतीपूर्ण कार्य है वो है कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे सोपान दर सोपान कार्यों को संपादित करते हुए सफलता प्राप्त करने की, वह एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित करते हुए बहुत ही आत्मीय संबंधों के साथ जुड़ करके, यानी मनोयोग से हम कैसे जुड़े भी और जोड़े भी। और इसका अर्थ ये होता है कि हम इसे एक अभियान को जन आंदोलन के रूप में कैसे देखें, इसको नीचे तक, क्योंकि अभी हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि हमारा जो सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल जो ये प्रोग्राम चलेगा, ये एक औपचारिक रूप से नहीं बल्कि औपचारिकता के साथ साथ संवेदनशीलता के साथ उन लोगों के तरफ से कि जहां हम पहुंचना चाहते उनको हम सही तरीके से इससे जोड़ पाए, उन्हें हम अवेयर कर पाए, उसे हम सहजता के साथ सजग करते हुए संवेदनशीलता के साथ समाधान के रास्ते में भागीदार बनाए। हमारा अभियान इस समय का कई स्तरों पर बातचीत करने से ऐसा अनुभव होता है कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम एक डेटा जांच का 7 करोड़ लोगों का जांच करेंगे। पर यह तो एक इनिशियल डेटा मैनेजमेंट है जिसके माध्यम से हमें आने वाले दिनों में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो करैक्टर को अगर हमें ब्रेक करना है तो बाद के दिनों में हमें कई चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। और वो ऐसे कुछ लोग होंगे जो हो सकता है कि ऐसा लगेगा कि वो नेगेटिव है, लेकिन उसमें पॉजिटिव होने का आने वाले दिनों में खतरा बराबर बना रहेगा, इस दृष्टि से कि फिर किसी न किसी से उनकी विवाह होगी, फिर किसी न किसी के साथ इस तरह से केसेस सामने आएंगे और इस तरह से किसी के परिवार में मेजर केसेस आएंगे, किसी के करेक्टर आएंगे, किसी में माइनर आएंगे। तो इसको अस्थाई तरीके से जब हम आज के दिन में इस बात को देखते हैं तो हमारे सामने सहजता भी लगता है और कठिन भी लगता है, दुरूह भी लगता है। सहज इस बात से लगता है कि यदि हम इसे एक बार डेटा को सही तरीके से बनाने में सफल हो जाए तो आज के दिन में जब हम डेटा, डिजिटल और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं तो हमारा मॉनिटरी सिस्टम बहुत इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन ये डेटा बनाने का जो कार्य है और इसके साथ लोगों को जोड़ने का जो कार्य है, ये बड़ा दूसरा पक्ष है, दूसरा ध्रुव कार्य है। क्योंकि इसमें दो चीजें, अभी हम कुछ स्थानों पर जब लोगों से मिले, बातचीत किए या इस तरह की बातें कुछ लोगों ने उठाई भी, जिसमें इस बात को कहा कि आखिर सरकार ट्राइबल का ब्लड जांच क्यों कराना चाहती है और इसके पीछे क्या रीजन है। तो कई बार हम सबको ये लगता है जैसे एक समय में जब कोविड का लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा था, उस समय भी कई इस तरह से लिटरेचर छपे, मैसेज पास ऑन हुआ, कितना इस तरीके से इको करने की कोशिश की गई जिसमें यह कहा गया कि आपको ये परेशानी होगी, ये कठिनाई होगी, ये एक साजिश है। तो इस तरह से कई चीजें, लेकिन एक जब मुहिम चलता है, कुछ घटना इस तरह की घटती है, कुछ वास्तविकता से लोगों को अनुभव प्राप्त होता है, तो उस तरह के चीजों को लोग नजरअंदाज भी करते हैं। लेकिन उस समय में ऐसी स्थिति पैदा होती है जो कई तरह से कठिनाई को बढ़ाती है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारे सामने एक ध्रुव कार्य है, जिम्मेदारी पूर्वक कार्य है। दूसरा पक्ष है इसके साथ साथ ही कि हम जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें कितनी कठिनाई झेलनी पड़ेगी, यह हमें सहस्त्र ढंग से मनोयोग से, और हमारा यदि इस बात के प्रति कमिटमेंट ना हो तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। और इसमें जन सहभागिता को हम कैसे बढ़ा पाए। चिकित्सक के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अपना दायित्व, अपना कार्य निश्चित रूप से है। जैसे अभी यह कार्यक्रम 2 मंत्रालयों को मिलाकर एक लक्ष्य के साथ कार्य करने का है, जिसमें अभी ऑलरेडी कार्य कुछ प्रारंभ भी हो गए हैं। सभी राज्यों को हेल्थ मिनिस्ट्री के तरफ से निर्देश भी दिया गया है, कुछ कार्य भी हो रहे हैं डेटा बैंक बनाने के मामले में। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैंने एक विषय आपके सामने रखा कि दुर्गम क्षेत्र और लोगों के अंदर कई तरह के ऐसी बातें जिससे लोग इस योजना के बारे में गलत तरीके से कई तरह के, या तो जैसे कई लोगों का ऐसा देखने को मिलता है जब कोई अच्छा कार्य हो रहा है उन्हें अच्छा नहीं लगता है। कुछ इस तरह के स्वभाव भी लोगों के प्रकृति में रहती है। ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है, लोग कहते हैं। तो ये होता है। और दूसरा एक स्वभाव होता है जिसको हमारे भाषा में विघ्न संतोषी बोलते हैं। उन्हें विघ्न और बाधा पहुंचाने से मन को संतुष्टि मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चारित्रिक तरीके से कि उनको उसी में आनंद मिलता है कि वो देखे और तो नहीं कर पाया ना, नहीं हुआ ना, तो उसको खुशी हुई। तो ऐसे लोगों की भी एक बड़ी जमात होती है। तो समाज में कई तरह के लोग होते हैं। इससे निकल करके एक इकोसिस्टम डेवलप करना जिसमें हर कोई सहभागी बने और हम उनके भविष्य के लिए सोच रहे हैं। हमारी जो जनरल एक सोच होती है कि अभी तक दृष्टि से हम क्या देखते हैं और उसका लाभ कैसे, जैसे कोई बहुत बीमार तो उसको कैसे ठीक करेंगे, ये तो सोचना ठीक है, लेकिन बीमार फिर ना हो इसके लिए चिंता करना भी तो बहुत जरूरी है। तो कई लोग इस तरह की बात करेंगे जो इस जनरेशन के लिए सोच रहे होंगे, अच्छे भी सोच रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आने वाले जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि हमारा कार्यक्रम जिसको बार बार माननीय प्रधानमंत्री दोहराते हैं कि हमें कार्यों को पूरे इस लक्ष्य के साथ करना चाहिए कि हम आने वाले
दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से इस देश के लिए कर रहे हैं। तो समस्या की भयावहता हम सबके ध्यान में है। हमारे देश की इस समस्या के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे थैलेसीमिया हो, या पूरी तरीके से हेमोग्लोबिनोपैथी के रूप में हम रिसर्च करते हो या कार्य करते हो, ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है, जिसका स्थायी समाधान जोड़ना। और जैसे अभी आंकड़े की दृष्टि से बताया गया कि पूरे दुनिया में 10 करोड़ लोग इससे प्रभावित लगभग हैं, उसमें 3 लाख बच्चे हैं और 3 लाख नए बच्चे जो इससे प्रभावित होते हैं। और उसकी जो मृत्यु दर है उसके बारे में भी अभी आपने सुना। और हम किस तरीके से आने वाले दिनों में लोग और नए बच्चों को सेव कर सकते हैं, इसके बारे में भी अभी ध्यान में लाया गया। तो एक जो सबसे बड़ी बात इस अवसर पर मैं कहूँगा कि जैसे 75% जो केसेस है वो अफ्रीकन कंट्रीज में है। हमारी आबादी के दृष्टि से यदि हम एक तरीके से इस तरह के आबादी को जोड़े तो वो हमारी 26-27% के लगभग, जो भारत में ट्राइबल की, अगर ट्राइबल की बात करें, दुनिया में एथनिक की बात करें तो उसकी आबादी की दृष्टि से हमारे 27% इंडिया की आबादी है। तो कुल मिलाकर के उस आबादी की दृष्टि से लक्ष्य लेकर हम कार्य कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस मामले में यदि इस कार्यक्रम को, और ये टीम जो आज इस भाव के साथ कार्य कर रही है कि ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, यानी जो भी कार्य नीचे तक करेंगे उनके सोच समझ इस ढंग से हो ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा करें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे बताया गया कि 113 साल के बाद अध्यक्ष बने हैं IPA के, इंडिया से बने हैं, तो इंडिया को ये मिला है। तो हम इस मामले में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, ये हमारी संभावना है यदि हम सही तरीके से सफल इसे कर सके। तो हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि हम बड़ी आबादी को हम कैसे समाधान के रास्ते में लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है। 17 राज्यों में इस बीमारी की पहचान मुख्यतः की गई है। वैसे तो देश के कई हिस्से में और भी होंगे, ये सारी चीजें अभी जांच में लगातार आएगी। इनिशियल जो हम डेटा देखते हैं या जो चर्चा में आती है कि ये नीलगिरी में फर्स्ट टाइम बहुत पहले ये इस तरह की डिजीज की जानकारी मिली थी। समय काफी बीता, पर अब हम इसे मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय एक जनजातीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है कि हम अपने इन सारे जो बड़े लक्ष्य है, और इसमें हमारी एक बड़ी टीम आप सब जो इसमें जुड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत देश के लिए भी, हमारे लिए भी और हम सबके लिए भी उपकार होगा। और जो लक्ष्य हमारा है, क्योंकि आज के दिन में यह बीमारी का समाधान, और मैं तो यह कहूँगा कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो यह सैटेलाइट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आज हम चंद्रयान को चांद पर भेजने में सफल हुए हैं, लैंडिंग हुआ है। तो इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम कल के दिनों में ऐसे सैटेलाइट के माध्यम से, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ट्राइबल के उन गांव तक, उन परिवार तक, उन बच्चों तक हम डेटा के दृष्टि से, और ये जो हमारा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें हम गांव हो या शहरी हो,
चाहे आंगनबाड़ी हो या आशा वर्कर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ्स हो या शिक्षक हो, पंचायत के सरपंच हो, क्योंकि अभी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जनप्रतिनिधियों से हो या ऐसे ट्रेडिशनल जो समुदाय और ट्रेडिशनल हेडमैन है उन लोगों की बैठक हो, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे सरपंच मुखिया के दृष्टि से, या ऐसे लीडर जो युवा लीडर है, उन लोगों के साथ हम हमेशा चर्चा करते हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम की एक श्रृंखला में यह भी हमें सहभागी के रूप में जोड़ने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, और उससे बहुत अच्छा आने वाले दिनों में हम जोड़ने में सफल होंगे। अब आज यह कार्यक्रम एक तरीके से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसका पूरा डिटेल कार्यक्रम की रचना में सबकी सहभागिता कैसे बढ़े, और एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि इसके साथ साथ कार्यक्रम के दृष्टि से जो हमें आउटकम आना चाहिए उसके लिए भी एक मैनेजमेंट सिस्टम हमारा अच्छा हो, क्योंकि कई बार एक तरफा हो जाता है कई चीजें, कई कार्यक्रम ऐसे हो जाता है कि हमने तो बहुत अच्छा किया, और जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि बहुत खर्चे हुए इलाज में, लेकिन नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो हमें देखना पड़ेगा कि इलाज कितना कर रहे हैं वो एक पार्ट है, ठीक कितने हो रहे हैं वो दूसरा पार्ट है। तो वो जरूर हमें देखना चाहिए कि हम इसको किस ढंग से जितने भी मेथड हो सकते हैं उसका उपयोग करें। और मुझे वास्तविक रूप से बहुत खुशी है कि इस टीम में जो मैंने सूची यहाँ पर सभी वरीय चिकित्सक विभिन्न चिकित्सा केंद्रों से जुड़े हुए हैं, रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। और आज यहाँ पर जिनके अध्यक्षता में डॉक्टर दीप्ति जैन जी के अध्यक्षता में और डॉक्टर अनुपम सचदेवा और डॉक्टर नीता राधाकृष्णन और हमारे यहाँ पर हम लास्ट टाइम मिले भी थे हमारे डॉक्टर साहब से जो लगातार थैलेसीमिया में बहुत लगे रहते हैं, ऐसे हमारे एम्स के देवघर के डायरेक्टर और अभी जिनका हम लोगों ने संबोधन सुना डॉक्टर ठाकरे जी का, तो ऐसे वरीय चिकित्सकों के बीच में अपने आप को पाकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। और मुझे आशा है कि हम इस तरह के कार्यक्रमों को नीचे सतही तौर पर पहुंचाने में सफल होंगे, क्योंकि मैंने शुरू में जैसे कहा कि हम उन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं जो कंदराओं में आज भी रहते हैं या 12,000 फीट के ऊंचाइयों में रहते हैं, तो हिमालय के चोटियों में रहते हैं, तो कोई सुदूरवर्ती जंगलों बिहार जंगलों के बीच में रहते हैं, उनकी अपनी समस्याएं अपनी संकट है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना है। और पहुंचना ही नहीं है बल्कि पहुंचकर एक समाधान के साथ वहां से वापस लौटना है। यही हमारी संवेदनशीलता है, इसी को हमें बना करके रखना है। और इस कार्यक्रम में अब मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि तकनीकी सेशन में ही ज्यादा बातें हम सुने तो बेहतर होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।